Hello everyone, welcome back to Mining World and Sri Prakash Singh channel. Today we are going to see blasting in opencast mining, and we will discuss all aspects related to blasting in opencast mining. In this video we will increase our perception related to practical knowledge in opencast mining, especially in blasting. This video is quite lengthy, but I am assuring you it's very crucial video and it is very vital for you to increase your perception in opencast mine. So let's start the video. देख रहे हैं यहाँ पर दो ब्लास्टिंग एक साथ लिया जा रहा है ना। एक कॉर्ड ये है, दूसरा कॉर्ड ये है ब्लास्टिंग के लिए। एट अ टाइम दो ब्लास्टिंग लिया जा रहा है, ठीक है। दोनों का डिले टाइम सेम है। इग्नेट किया जाएगा, ये तार इधर से फूटते जाएगा, उसी सेम टाइम पर एक तार इधर से फूटते जाएगा। और ये वाला तार देखिए, ये ऊपर की तरफ गया है, ये दिख रहा है। ये जो गया है ना वो तार, ये वाला तार गया है लेफ्ट तरफ का, है ना। और लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, दोनों का डेटोनेटिंग टाइम सेम है, ठीक है। जब ये जलेगा तब ये भी जलेगा, दोनों तरफ एक साथ एक बार में ब्लास्टिंग होते जाएगा, बस लोकेशन चेंज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का ये कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉर्ड वहाँ से हम लोग कनेक्शन देते देते आए हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली कैसे होता है। ये एक कॉर्ड देखिए, देख रहे हैं ना। ये एक कॉर्ड ऐसे कनेक्ट, डबल एंडेड है। Here plain detonator which is connected to explorer, and this plain detonator are made up of copper. It seems to be reddish brown color. These plain detonator are connected to our detonator of our nonal. When we press the button of explorer, this plain detonator get detonated, so that due to shock our detonator of our shock tube or nonal get blasted. Now this produced very huge amount of shock inside this tube, and due to this shock the other detonator which is connected to our this shock tube get detonated. ये जो आपको यहाँ पर दो कॉर्ड दिख रहा है जो मेरे हाथ में है, ये हम लोग का प्लेन डेटोनेटर का कॉर्ड है। ये प्लेन डेटोनेटर को कॉर्ड को हम लोग उस वायर से कनेक्ट करेंगे जो वायर एक्सप्लोडर से कनेक्ट है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सिंगल वायर को कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोग ये फर्स्ट वायर को कनेक्ट कर रहे हैं और ये कनेक्ट कर दिया, और इसी टाइप से हम लोग दूसरे वाले वायर को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो भी हम लोग वीडियो में देखे हैं, मैं हर एक चीज़ को तो समझा नहीं सकता हूँ, खास प्रैक्टिकल नॉलेज स्टोरी डिफरेंट एंड आवर थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थोड़ा सा पेन पेंसिल यूज़ करके हम लोग फर्दर देखते हैं हम लोग अभी तक क्या किए हैं, तो हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू पेन पेपर वर्क। Before gonna start this video, please like the button and subscribe my channel and share this it's very important video regarding to create your perception in opencast mining, how blasting take place in opencast mining, the sequence of connecting one row of hole to another row of hole, and what step we take during the blasting. So please subscribe my channel, like this video and share this video among your friends, and I'm very sure about this video, it will further enhance your perception regarding to blasting in opencast. So apart from it, let's start. Here we can easily observe it is our OB deposit. Okay, this is OB which present just above the coal deposit, and in other way and in other part there is our unblasted hole, and this unblasted hole is called misfire. And why misfire is created? The main reason of creation of misfire is to breakage and cut off our shock tube.
Why shock tube is cut? Shock tube is cut due to small fragment which has been generated during the blasting. The speed or velocity of this fragment is very high, and this fragment may cut our shock tube so that shock can't pass one hole to another hole due to breakage. That's why many times our shock tube get cut, get damaged, and blasted hole is created. Okay, let's move toward blasting pattern. Here we can easily see the hole which is drilled on OB, which is probably just above the coal deposit, and there is some end blasted hole which has been drilled earlier. Now the nonal are connected to our hole which has been drilled on OB. So in this picture we can see we connect a nonal or shock tube to hole which is unblasted. So in this figure we can easily observe we have two separate nonal, okay, and we are making arrangement for two separate blasting. Here we mention 1 1 2 2 3 3. Here 1 1 is hole which is blasted first, and 2 2 is hole which blasted after 1 1 is blasted. Okay, this process is same for both unblasted hole and blasted hole, cause I told you earlier in this video unblasted hole and hole which is drilled on OB are going to blast simultaneously at the time to decrease the interval of time, which decrease the vibration and which decrease the risk of accident. First shock tube is connected to our first explorer, and second shock tube is connected to our second explorer. So in this picture we can see 1 1 is blasted, 2 2 is blasted, and 3 3 is going to blast in both unblasted and blasted holes. So we can easily arrange and we can easily understand the pattern in which the blasting hole is going to blast. So we can find very easily the sequence of blasting. Now compare this blasting hole to first, as we are seeing in left side and right side. Okay, this process is continue and our blasted material move or thrown toward free phase. Okay, and you have to know what is the meaning of free phase. So free phase is a phase or area through which blasted material get thrown on this direction after blasting, so that new free phase area is created for next hole, for next blasting hole. Let's talk about shock tube or nonal. A non-electric nonal or shock tube is using. This is called non-electric. Why? Because this shock tube blasts due to vibration which is travel inside this tube. Inside this tube, 14 to 16 milligram per meter chemical mixture present inside it, which help to produce a sufficient wave which blast and detonate the detonator. So here we have two detonator, 1 and 2. Detonator 1 is called double dead detonator cause at one end there is clip inside which detonator is present. However, on other end there is another detonator, as you can observe in picture which is appearing on your screen. This is called double dead detonator. However, in figure 2 there is a nonal or shock tube on which other end is open to the atmosphere. There is nothing present at other end. However, at one end clip is present on which detonator is present inside it. So one is called double deck detonator and other second is called single deck detonator. As you are watching in figure or in this video, white color detonator is
is single detonator having length 5 meter. However, the green color nozzle is double deck detonator having length 12 meter. So friends, perhaps this video is longer as compared to my previous video, cause in this video I'm trying to cover all important aspect and practical view related to blasting in open cast mine. So just try to ignore it and try to gain as far as possible for you. I'm trying to give you a lot, so please try to consume a lot. So now we are gonna see how to connect the detonator of shock tube and plain detonator, and this plain detonator is further connected to exploder. Here red color indicate plain detonator and black color detonator is detonator of shock tube. Plain detonator is further connected through exploder through wire. Plain detonator and black detonator are placed one over other. When we press the button of exploder so that plain detonator get blast, and due to this blasting detonator of shock tube also get blast, so that shock create inside the tube and all detonator are blast continuously, and finally our hole get blast. In this way blasting is take place. Here plain detonator is connected to exploder, and we can easily observe in this figure how plain detonator and detonator of shock tube wrap one over other. Now the whole circuit is complete. देखते हैं कैसे चार्जिंग करेगा, उसके बाद ब्लास्टिंग करेगा। ठीक है ना, ये कैसे कॉर्ड को लाया जा रहा है। अभी इसे चार्जिंग के लिए मशीन के ऊपर ले जाएंगे और फिर वहाँ पर जाने के बाद ब्लास्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है तो मैटर। यहाँ पर अभी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमें मिस फायर और अनब्लास्टेड होल एंड ओबी विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द खोल सील, इन दो जगह ब्लास्टिंग करना है। इसीलिए हम लोग दो एक्सप्लोडर लिए हैं। दोनों एक्सप्लोडर का बटन एक के बाद एक साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर। तो ये देखिए की डाला, की डालने के बाद की ऑन किया, की ऑन करने के बाद अब ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइट। अगर ग्रीन कलर की लाइट जलती है तो हम लोग का सर्किट कंप्लीट है। और ये ओवरमैन क्लियरेंस देते ही बटन प्रेस करने के लिए देगा, और ये बटन प्रेस करते ही ब्लास्टिंग होगा। चल ठीक आगे पीछे मारियो है। हम यहाँ पर बहुत क्लियर सुन सकते हैं ब्लास्टिंग होने के बाद दो ब्लास्टिंग की आवाज़ आई थी। जब पहली आवाज़ आई थी जब पहला एक्सप्लोडर का बटन प्रेस किया गया था, दूसरी आवाज़ आई थी जब दूसरा एक्सप्लोडर का बटन चेक किया गया था। विद इन अ सेकेंड हुआ, इसलिए एक बार और आप तो बहुत लोगों के दिमाग में एक बहुत कॉमन सा सवाल हो रहा होगा कि हम लोग दो ब्लास्टिंग 1 बाय 1 एक साथ क्यों लिए। क्योंकि हम लोग का मेन ब्लास्टिंग का पर्पस क्या है कि कम से कम वाइब्रेशन क्रिएट हो। कम से कम वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो स्टार्टर कम हिलेगा, तो आसपास के जो भी घर हैं या कोई भी चीज़ है उसके डैमेज होने के चांस कम रहेंगे। इसीलिए हम लोग एक ब्लास्टिंग किए, तब तो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ ही। विद इन इंटरवल ऑफ सेकेंड हम लोग दूसरा ब्लास्टिंग भी लिए, तो जितना ब्लास्टिंग उस समय क्रिएट होना था उतना ही ब्लास्टिंग इस बार भी क्रिएट होगा। और आपको मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, ये शॉक ट्यूब है, यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत कम क्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू डेटोनेटिंग कॉर्ड। और हम लोग एक ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके कारण जो भी उसके फ्रेगमेंट थ्रो आउट करेंगे, तो जो हम लोग का दूसरे ब्लास्टिंग अरेंजमेंट रहेगा वो अरेंजमेंट में कॉर्ड कटने का चांस रहेगा। तो इसलिए हम लोग 1 बाय 1 एक साथ ब्लास्टिंग करते हैं। अभी जो भी ब्लास्टिंग हुआ उसके राइट की तरफ में हम लोग का ड्रिलिंग हो गया है, चार्जिंग हो गया है, एंड नाउ ओनली ब्लास्टिंग इज रिमेन। सो वी आर गोइंग टू मेक complete the circuit and will take blasting again.
So stay with us. होल है, ये अपना उड़ जाएगा। देख रहे हैं? अभी यहाँ पर जस्ट ब्लास्टिंग होगा, है ना। यहाँ पर स्टीमिंग कर लिया गया है, कनेक्शन कर लिया गया है, चार्जिंग करेंगे वहाँ पर, उसका सीधा ब्लास्टिंग करेंगे। अभी ओवरमैन साहब वो ऊपर जा रहे हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। चेक करेंगे कि ब्लास्टिंग कैसा हुआ, उसके बाद फर्दर कोई मिस फायर है या नहीं है ये देखेंगे और बताएंगे, ठीक है। मैं इनिशियल फेज में हूँ, ठीक है। जो कॉर्ड है अभी यहाँ पर भी 2 ब्लास्टिंग नहीं, यहाँ पर एक सिंगल ब्लास्टिंग होने वाला है। पिछले बार हम लोग देखे थे कि 2 कॉर्ड ले गया था, तो वहाँ पर 2 ब्लास्टिंग एक साथ किया था, क्योंकि वहाँ पर 2 एक्सप्लोडर रखा हुआ था, ट्रिगर दबाने पर ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर देखिए ये जो है शॉक ट्यूब, ये डेटोनेटर से कनेक्ट है। डेटोनेटर से कनेक्ट होने के बाद सबसे पहला जो ब्लास्ट होगा वो ये होल ब्लास्ट होगा। ये होल का फ्री फेस कहाँ है? ये होल का फ्री फेस इधर है, ठीक है। ये होल सबसे पहले ब्लास्ट होगा, क्योंकि ये कॉर्ड यहाँ से गया है। देखिए यहाँ पर एक रेड वाला दिख रहा है और वहाँ पर एक रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये डबल डेड शॉक ट्यूब है। सबसे पहला ब्लास्ट होल यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये ब्लास्ट होल होगा तो यहाँ पर देखिए मटेरियल कहाँ जाएगा? मटेरियल को फ्री फेस तो जगह ये दिख रहा है, तो सारा मटेरियल यहाँ का इधर की तरफ जाएगा। अब ये ब्लास्ट होने के बाद शॉक देगा। शॉक देने के बाद ये शॉक ट्यूब से ट्रैवल करेगा, इसके अंदर हाई वाइब्रेशन रहेगा और ये सीधा जाके एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से 5 होल आपस में कनेक्ट हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पर डिफरेंट शॉक ट्यूब एक क्लिप से कनेक्ट है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ये रेड वाला सबसे पहले ब्लास्ट होगा और ये जो आप येलोइश ग्रीन और जो ग्रीन है वो सेकंड ब्लास्ट होल है। एरिया में हमें तीनों होल एक साथ ब्लास्ट होगा। उसके बाद जैसा कि हम लोग डायग्राम में इजीली देख पा रहे हैं, सेकंड ब्लास्ट होल के बाद कैसे थर्ड ब्लास्ट होल होगा, फिर कैसे फोर्थ होल ब्लास्ट होल होगा। फोर्थ यहाँ पर जितने भी होल है एक साथ ब्लास्ट होंगे, 4 जितने भी थर्ड है 3 एक साथ ब्लास्ट होंगे, जितने भी 6 हैं एक साथ ब्लास्ट होंगे। ये ब्लास्टिंग भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर देखिए पूरे माइंस में कोई नहीं है, तकरीबन आधा किलोमीटर होगा उस जगह से उस जगह का डिस्टेंस, है ना। तो देखते हैं ये ब्लास्टिंग। ये जो शॉक ट्यूब है इसका एक कॉर्ड यहाँ है, दूसरा कॉर्ड यहाँ है। अब आपको फाइनली दिखेगा कि ये जो अभी शॉक ट्यूब, आप ध्यान दीजिएगा, एक शॉक ट्यूब में 2 कॉर्ड दिख रहा है ना, ये 2 कनेक्टिंग कॉर्ड है। लेकिन जब लास्ट वाले एंड में क्या होगा, जिससे हम लोग का डेटोनेटर कनेक्ट रहता है, एक ये प्लास्टिक का जो भी कॉर्ड है, कि आप जो ध्यान से देखेंगे लास्ट वाला रेड ट्यूब में वो एक रेड कलर का कॉर्ड दिख रहा है, और यही जो ग्रीन वाला है। तो यहाँ पर हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि हम लोग का शॉक ट्यूब एक्सप्लोडर के प्लेन डेटोनेटर से कनेक्ट है और हम लोग इसको वायर से वाउंड किए हुए हैं। प्लेन डेटोनेटर ब्लास्ट करेगा जिसके कारण शॉक क्रिएट होगा, किसके अंदर? शॉक ट्यूब के अंदर, और ये शॉक ट्रेवल करेगा फर्दर दूसरे हिस्से डेटोनेटर डेटोनेट होंगे। At upper part, detonator is placed inside it, and this way detonator get blast. So, due to detonation of detonator, huge amount of wave and vibration created inside the shock tube and travel to it, which help to detonate the other detonator. पता ही नहीं चल रहा है। So let's move towards. यहाँ पर देखिए चार्जिंग सेंटर बना रहे हैं, यहीं पर चार्ज करके यहीं से ब्लास्ट करेंगे ये, ठीक है। लास्ट अपना वो वहाँ होने वाला है, ये जो ऊपर का दिख रहा है अपने को, ये एरिया यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। हेलो रोहित। थ्री, 2, 1।
ये है। ये सो ब्लास्टिंग के बाद चलिए हम लोग ब्लास्टेड एरिया की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ब्लास्टेड एरिया से अबाउट 400 मीटर दूरी पर थे। बोल्डर बहुत दूर तक फेंकाया है। एक्चुअली ये बोल्डर नहीं, ये स्मॉल फ्रेगमेंट है, बोल्डर फॉर्म नहीं हुआ है। हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लास्टिंग बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग कैसे मालूम चलता है हम लोग का ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है? ये जो पार्टिकल है, ये जो कोल के आप जो पार्टिकल देख रहे हैं छोटे छोटे साइज़ में है, इसका मतलब इसका फ्रेगमेंटेशन अच्छा हुआ, पार्टिकल टू पार्टिकल साइज़ इसका बढ़िया है। ठीक है, तो ये देख के हम लोग बोलते हैं कि इसमें ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है। सो अब यहाँ पर ग्रेडर आएगा या फिर बुलडोज़र आएगा और जो सारे डेब्रीज या फिर ओवरबर्डन है जो पार्टिकल साइज़ में बिखरे हुए हैं उसको एक तरफ में डंप करेगा। जैसा कि हम लोग ईजिली देख पा रहे हैं कि हम लोग का फ्रेगमेंटेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुआ है। इतना अच्छा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। ठीक है, CMPDIL कहता है कि 1 kg एक्सप्लोजिव में आप 2 मीटर क्यूब OB निकालिए, लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन इतना अच्छा हुआ है, उससे मालूम चल रहा है कि 1 kg एक्सप्लोजिव में हम लोग का अबाउट 1.2 to 1.5 मीटर क्यूब का OB निकला हुआ है। सो हम लोग का ये लॉस में है, मीन्स जो हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा ब्लास्टिंग नहीं हुआ है, इतना अच्छा फ्रेगमेंटेशन भी होना बेकार है। एक्चुअली यहाँ पर होल में जो लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सप्लोजिव फिलअप कर दिया गया था, इसलिए फ्रेगमेंटेशन हम लोग का इतना अच्छा हुआ और इसलिए ये उतना अनफेवरेबल नहीं है। तो यार इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, माइंस से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा। यार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं श्री प्रकाश के साथ।